Hello everyone, this is Vishakha Jaga coming up with next round of current affairs. And in this session, let's talk about the next bout of news, and that is political news. तो अब हम इसमें थोड़ी political news discuss करेंगे, उसे थोड़ी सी political और ज़्यादा exam perspective से देखेंगे. Moving ahead, first in the series is that draft rule for live streaming of court proceedings are out. Now we know that for long time बहुत ये अपील चल रही थी कि whatever the court proceeding is बहुत opacity है. Earlier at least lawyers had the access to court proceeding, that they can go and sit in the court proceeding that is going on, and then victims or the appellant, they could go in the court. But besides that बहुत ज़्यादा opacity was there, and whatever news that you were hearing from the for what is happening in the court was from a journalistic perspective. Now that is something an attempt is being made कि उसको बदल दिया जाए by way of making the live streaming of the supreme court proceeding. जो judicial proceeding जो हो रही है उनको live streaming करने की बात चल रही है. Now our current Chief Justice of India has also agreed to the same thing, and for which is said कि इसको करने के लिए एक ड्राफ्ट रूल्स लेकर आए हैं. इट्स नॉट दैट कि सारी ही प्रोसीडिंग ऑनलाइन कर दी जाएंगी, बट व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोसीडिंग जो कि ऑनलाइन की जाएंगी और किन केसेस में एग्जाम्पशंस किए जाएंगे, उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स के बारे में बात की गई है. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस कि कहाँ पे ये लगेगा और कहाँ पे ये नहीं लगेगा. Moving in this section is the draft rule says कि draft rule release a Supreme Court e-committee for live streaming and recording of proceeding, and the rules are part of National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology. So this was already even the government or even the Supreme Court was planning to ये जो पूरा entire proceeding है उसको थोड़ा online कर दिया जाए. उससे transparency भी आएगी, काफ़ी accountability भी maintain रहेगी, because we know our judicial infrastructure is as such कि उनके ऊपर accountability बहुत difficult है. अपॉइंटमेंट में भी वो खुद को अपॉइंट करते हैं ड्यू टू आवर कलीजियन सिस्टम. और अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, सम टाइम आई विल आल्सो ब्रिंग अ सेशन ऑन दिस कि लाइक जुडिशरी, इन केस ऑफ जुडिशियल सिस्टम अ जज अपॉइंट्स अ जज, और इसमें एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो बहुत ही कम होता है. एंड इवन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल प्रोसेस जो होता है वो भी बहुत ही कम्बसम होता है. इट इज़ लाइक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो, इस तरीके की मेजोरिटी चाहिए होती है. एंड बिकॉज ऑफ द कम्बसम प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज और एनी जज फॉर दैट मैनर, it is very difficult to keep a judge accountable. And because of this lack of accountability, it has become important that किसी न किसी तरीके से a transparency and accountability is brought in the system. And कौन सा सिस्टम जो इन लोगों ने डिवाइस किया है जैसे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, दैट सिस्टम इज सेट बाय लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग. अब इस प्रोसीडिंग में व्हाट दे हैव डन इज राइट टू एक्सेस टू जस्टिस गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि चैरिटी नहीं कर रहे हैं, राइट टू जस्टिस आपका आर्टिकल 1 में वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है. एंड दैट राइट ऑल्सो इंक्लूड एक्सेस टू लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट. दैट मीन्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर क्वेश्चन आता है ना कि आर्टिकल 21 में आपको कौन से राइट मिल जाते हैं, तो आर्टिकल 21 में आपको ये राइट भी मिल जाता है दैट यू हैव राइट टू एक्सेस द लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग. एंड रूल also try to maintain a balance in between information and concern from privacy. एक तरफ पे it has declared it is your fundamental right to ask the judiciary that you have access to information what is going in Supreme Court for the sake of transparency. Transparency के sake के लिए you want to have the access to information. But then the court is saying कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें ना black and white होती हैं. Most of the reality lies in shades of grey. तो सुप्रीम कोर्ट इज नाउ ट्राइंग टू मेंटेन अ बैलेंस इन बिटवीन. एक तरफ है आपकी प्राइवेसी और दूसरी तरफ है आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन, दैट इज आरटीआई. और सुप्रीम कोर्ट उसको बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग इवन व्हेन वी आर गोइंग टू नॉट अलाउ यू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इट इज़ फॉर योर ओन सेक. अब समझते हैं हमारा सेक कौन सा है इसमें, बिकॉज आरटीआई के बारे में तो बात कर ली, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई इज ऑलरेडी लीगल राइट. नाउ राइट टू एक्सेस टू प्रोसीडिंग अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट भी हो चुका है. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट, और आप इसको कहीं भी किसी भी मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं. और ऑलरेडी भी रिमेंबर लास्ट ईयर 2020 के मेंस में आरटीआई पे क्वेश्चन आ चुका है, एंड आरटीआई हैज़ बीन ट्वीक्ड अ लॉट. तो मतलब ऑलरेडी एंड जुडिशरी भी आपकी बहुत न्यूज़ में रही है. सो फॉर दैट रीजन इट कैन बी आस्क्ड. और नहीं भी पूछा जाता है तो मेंस में यू हैव वन एडवांटेज.
whatever you want to bring, you can write in your paper. So with that one advantage, you can keep in mind, और जो आपके दिमाग में आता है उसको ज़रूर लिखिए. Now let's move ahead. As I said, judiciary was trying to maintain a balance in between कि कहाँ पे information देनी है और कहाँ पे information नहीं देनी है. It was trying to maintain a balance in between your right to privacy and your right to information. तो इधर आपका RTI आ गया और इधर आपका जो कि थोड़ा आर्टिकल 19 से आता है और इधर आपका राइट टू प्राइवेसी आ गया और जो आपका आर्टिकल 21 से आता है. अब 21 ही 21 से क्लैश कर रहा है इसमें. Now, how judiciary maintain a balance? Judiciary maintain a balance by saying that exclusion of communally sensitive cases. In that case, कि public order आपका hurt हो सकता है. Then in that case, judiciary will not go for the live proceeding. Also, if the case involves sexual offences and gender violence against women, so it is actually goes against both. Accused till he is not proved guilty, it is actually wrong in an entire judicial system कि उसकी identity reveal कर दी जाए और he has to go through the entire stigma. And if he is not found guilty, then he'll have to live with the stigma. So that it is for the accused and even for the woman, because our society is not very kind to the woman who herself is a victim. We know the kind of society we live in. यहाँ पे रेप विक्टिम बार बार विक्टिमाइज होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी आइडेंटिटी को सिक्योर किया जाए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड जो जुडिशरी ने इसमें डाले हैं कि एक्सक्लूशन ऑफ द कम्युनली सेंसिटिव केसेस एंड दोज मैटर जहाँ पे इनफ वायलेंस होता है. देन लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिमोनियल मैटर्स. इट्स ऑल्सो कि किसी की फैमिली मैटर भी सेट की देखो किसी के फैमिली के मैटर में दखल ना दी जाए. अब इसमें किसी का फैमिली मैटर में किसी का नेशनल इंपॉर्टेंस की बात तो आ नहीं रही है. सो जुडिशरी हैज़ एक्सक्लूडेड इवन दैट एज वेल. ऑल्सो जो चाइल्ड राइट केसेस होते हैं इन केस ऑफ POCSO, इवन चाइल्ड आइडेंटिटी नीड प्रोटेक्शन, सो केसेस अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऑल ऑफ दीज आर द वन जिनको एग्जाम्पशन दे दी गई है. सो दीज आर लाइक जुडिशरी विद थॉरो कंसिडरेशन है डिसाइडेड कि इन सबको इससे एक्सक्लूशन मिलेगी. नेक्स्ट इज द बेंच कैन exempt फॉर रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग. बट ऐसा नहीं है कि जो लाइक द वे सुप्रीम कोर्ट लाइक जुडिशरी वो नहीं होता कि नेशनल गवर्नमेंट व्हाट इट डज, जो एग्जाम्पशन की लिस्ट होती है बहुत वेग होती है एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर. जुडिशरी हैज सेड कि even when the exemption will be exercised, judiciary will have to give the reason in writing. It has to say in writing that why it is actually not considering this, or like it will say only when it is antithetical to the administration of justice. अब बहुत बड़ा word use कर लिया right ना, antithetical, that means against. When it is against the justice, उस आइडिया से अगेंस्ट चला जाए तो ऐसे केस में जुडिशरी क्या करेगी, लाइव प्रोसीडिंग नहीं करेगी. सो whenever it is antithetical to the idea of justice, judiciary will not go for the live proceeding of the cases. Now let's move ahead. Next is final decision will be with the bench, but it is guided by principle of open judicial process. Now the final decision कि क्या होगा वो बेंच के पास होता है, बट जुडिशरी उसको भी मतलब बाद में इंटरप्रेट कर सकते हैं. मे बी जस्टिस चंद्रचूड़ का आपका एक बेंच बैठता है, इट डिसाइडेड कि लाइव प्रोसीडिंग नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट देन some other judge came and he said no, it is not that sensitive a case and you can go for the live proceeding for the matter of public interest. Now in that case, for the matter of public interest, the judicial process on the basis of it will be guided by principle judicial process, बाकी bench decide कर सकते हैं. So final decision will be the bench, but it will be guided by the judicial principle of open judicial process. उस process को follow ही करेंगे. I'm sorry, इसमें मैंने थोड़ा इधर मिस्टेक कर दी. Now next is personal information such as date of birth, home address, identity card number, etc. be deleted. इसमें ये भी है फॉर द सेक ऑफ योर प्राइवेसी. अब इस नंबर का कोई पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं है, आपके किसी के आधार कार्ड से क्या पब्लिक इंटरेस्ट फुलफिल होने वाला है. फॉर दैट रीजन जुडिशरी ने इस सबको एक्सक्लूड करने की बात की है. सो ओवरऑल दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कम्स आउट टू बी अ वेरी प्रोग्रेसिव वन, और आप इसे अपने मेंस के आंसर में आसानी से लिख सकते हैं. सो दिस वॉज बी डन विद पॉलिटिकल इशूज़. Now let's move ahead with social issues. अब हमें कुछ social issues के बारे में बात करेंगे. In terms of social issues, now to protect the LGBTQ community, High Court has given directive to protect the LGBTQ community. Now in this series, let's talk about and protecting LGBTQ community rights. So the High Court has come up with various guidelines ki how we can protect their rights. Now let's move ahead. In this series is the next article.
is this? Wait a second. Now, its article talked about in order to protect the rights of the LGBTQ community. It says the Madras High Court has said to the Ministry of Social Justice that create a list of the NGOs who can cater to the needs of the LGBTQ community. इन टर्म्स ऑफ कि अगर उनको बाय द वे अगर काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, या फिर उनको लीगल हेल्प प्रोवाइड करनी है, या फिर अगर उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करनी है, या फिर अगर उनको फूड सप्लाई क्रिएट करनी है. So there are various non-profit organizations which are already working for this activity. So all you have to do is create a list of those NGOs so that you know whenever people from those communities are seeking any help, they are not, even if you are not able to provide them help, an NGO can do. So it is like creating a database of NGO जो कि उनकी मदद कर सकते हैं. Moving ahead is a welfare measure for the LGBTQ. Now, welfare measures में और क्या क्या उन्होंने announce किए हैं. It says कि while doing all of that, please maintain the principle of confidentiality. अगर पुट्टू स्वामी जजमेंट ने एक चीज़ किया है तो उसने प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया है. एंड फॉर दैट रीजन नाउ मोस्ट ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, या फिर आपके लॉज क्यों ना हो, या फिर आपके लेजिस्लेशन क्यों ना हो, या पॉलिसी बनाओ, या कोई भी एक्शन क्यों ना लो, privacy and confidentiality has become an intrinsic matter of all of that. That's why even ये judgment भी यही चीज़ कहती है. It talked about the records of all those persons should be kept confidential. आप प्लीज़ उस रिपोर्ट उनके डिटेल्स को ऑनलाइन ना लीक करें, उनकी भी डिग्निटी को मेंटेन करें. Then it said कि appropriate changes has to be made by the existing government in the existing facilities. अपना कुछ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज आप गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द पीपल हु आर इन नीड इन टर्म्स ऑफ लाइक गरिमा गृह, दैट इज शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर, या फिर आंगनबाड़ी शेल्टर्स हो, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ होम दैट कैन इवन प्रोवाइड हेल्प टू द LGBT कम्युनिटीज. सो फार दे आर बाइनरी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्प, कि या तो आपके लिए मेल के लिए है या फिर आपके फीमेल के लिए है, और इस तरीके से डिविजन होता है. पर दैट बाइनरी क्लासिफिकेशन आपके LGBT कम्युनिटी के लिए तो नहीं लगता है. इन दैट मैनर इट सेज कि जब आपकी थिंकिंग बदल चुकी है तो कम से कम इंस्टीट्यूशंस को भी बदलो ना. एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इसका आपको एग्जांपल में डाल सकते हो, दैट इज दैट कल्चरल लैग थ्योरी. आपने पढ़ी है ना कल्चरल लैग थ्योरी सोसाइटी में. कल्चरल लैग थ्योरी क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, राइट ना, नई टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, बट वैल्यूज लोगों की नहीं बदलती. ऐसा उल्टा भी होता है, वैल्यू बदल जाती है और टेक्नोलॉजी नहीं बदली. तो आप यू कैन टॉक अबाउट रिवर्स. सो फार आपने कल्चर लैग थ्योरी में सोशियोलॉजी में क्या कहा था, कल्चर लैग सेज कि देखो नई एप्पल के फ़ोन आ गए, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन लोग उसी एप्पल के फ़ोन को इंटरकास्ट मैरिज के लिए करते, सॉरी कास्ट स्पेस इंट्रा कास्ट मैरिज के लिए यूज़ करते हैं. मैट्रिमोनियल साइट्स आपकी कैसे होती है, कास्ट को प्रमोट करती हैं. तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट आ गई, मोबाइल फ़ोन है, सेल फोन है, बट आप उससे वैल्यूज़ कौन सी प्रमोट करें, ओल्ड वैल्यूज़. अब क्या है, वैल्यूज़ तो नई आ गई हैं, आप LGBT कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने लगे हो, बट इंस्टीट्यूशंस नहीं बदले हैं. यू हैव नॉट मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस. सो दिस इज लाइक ऑल्सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. एंड प्लीज डू राइट आंसर. आई एक्चुअली एनालाइज एनी स्टोरी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ राइटिंग फ्रॉम मेन्स एंड बोथ राइटिंग फ्रॉम मेन्स एज लाइक प्री एज वेल. अब चलते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम. अगर कल का आपको सिंप्लीफाइंग एडिटोरियल याद हो, देन आई मेड अ लॉन्ग आर्टिकल अबाउट एथिक्स के जो 3 कंपोनेंट होते हैं फॉर चेंजिंग और लाइक परसुएडिंग अ पर्सन, एंड दैट वर्क्स ऑन 3 एस्पेक्ट, एथोस, logos and pathos. That is your emotions, your trust path, and that is a logical aspect. तो अब आपको क्या करना होगा, आपको लोगों को सेंसिटाइज करना होगा, राइट ना. अब पुलिस, प्रिजन अथॉरिटीज, जजेस, हेल्थ प्रोफेशनल, एजुकेशनल प्रोफेशनल, उनको भी तो सेंसिटाइज करो. मतलब अभी सिर्फ हायर जुडिशरी तक ही क्यों रिकॉग्निशन लिमिटेड है. रिकॉग्निशन इफ अ वैल्यू इज चेंजिंग then it should not be limited to your elite जो आपका सोसाइटी में जो elite है, it should percolate to your major mass value as well. इसको क्या कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ग्रेट ट्रेडिशन,
राइट। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ा था इसे, सोसाइटी में जो इलीट्स की वैल्यू है उसको ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं और जो मास की वैल्यू है उसको कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन। नाउ व्हाट आर जजेस आर सेइंग कि जो ग्रेट ट्रेडिशन है, जो इलीट जजेस अब तक इस वैल्यूज को मानते हैं, उसे थोड़ा लिटिल ट्रेडिशन में लेके जाओ, जरा मासेस तक लेके जाओ। और उसके लिए तरीका कौन सा अपना रहे हैं, उसके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, आप जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चाहिए। और आप अपने सोशियोलॉजी या फिर आप एंथ्रो के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप पीएसआईआर आपके आगे इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शनल है, तो उन सब में ये आपको काम आ सकता है। सो केयरफुली आई वुड सजेस्ट यू टू एक्चुअली लुक दिस आर्टिकल फ्रॉम दोज पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए अपने आप को अवेयर करा देते हैं टू अंडरस्टैंड ये पूरा स्पेक्ट्रम, रेनबो स्पेक्ट्रम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, L stand for lesbian. That means this is now these three category are on the basis of sexual orientation. You know, it's not a male does not feel being male, male feel being a male, female feel being a female, but their sexual partner is goes against what is being given by society. अब सोसाइटी क्या बोलती है कि मेल से फीमेल तक अट्रैक्ट हो सकता है, बट ऐसा इन रियलिटी नहीं होता राइट। अब मेल की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। नाउ दे इनहेरेंटली ही फील बीइंग अ मेल, he feels being a male, he feels being a male, but they are attracted to each other. So that is what we call gay, that is the gay identity. And when a female is attracted to a female, here one female is attracted to another female, that is being a lesbian identity, right? Now if a particular male is attracted to both sexually female as well as male, या फिर female is attracted to both male एज वेल एज फीमेल, तो उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो ये जो आपकी पहली 3 कैटेगरी ना, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3, तीसरी कैटेगरीज, ये जो 3 कैटेगरी हैं ये आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर हैं। लेकिन इसके बाद जो बाकी कैटेगरी हैं वो थोड़ा सा आइडेंटिटी के बेसिस पे आ जाती है। सो दिस वाज लाइक, ध्यान रखना आप जब LGB तक जा रहे हो तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन पे हम आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी ही क्राइसिस में आ जाती है। व्हाई? इन अ ट्रांसजेंडर अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर फ्रॉम व्हाट इज असाइंड एट बर्थ। नाउ अब उसकी बॉडीली अ पर्सन माइट बी अ मेल, क्योंकि इसके ऑर्गन्स मेल वाले हैं ना, बॉडी बाय बॉडी ही इज अ मेल, बट इंटरनली he feel being a female. That is, a female feel being trapped inside a body of male. It per se like as if अगर मैं ट्रांसजेंडर होती तो मे बी मेरी फीमेल बॉडी आई होप फीमेल जैसी लगती है, बट अंदर से आई माइट हैव बीन फीलिंग अ मेल एंड देन आई वुड हैव फेल्ट एज बीइंग अ मेल ट्रैप्ड इनसाइड अ फीमेल बॉडी. So that is a transgender identity. That means the identity does not recognize what I am being assigned at birth. बर्थ पे जिस बेसिस पे जो मेरी फीमेल एनाटॉमी है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांससेक्सुअल. ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, अब इसको इतना यूज नहीं करते, बट फिर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली उनके लिए यूज होता है दोज हु हैव एक्चुअली गॉन थ्रू सर्जरी से उन्होंने अपने आप को, मतलब दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी एंड अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, उन्होंने अपने अंदर वो चेंजेस लेके आ चुके हैं. सो दिस लाइक इन आउटडेटेड टर्म ओरिजिनेटेड एंड साइकोलॉजिकली थोड़ा ये है, ये उनके लिए जिन्होंने परमानेंट चेंजेस कर लिए हैं. सो लाइक आई एम अ फीमेल बट इंटरनली आई ऑलवेज हैव फीलिंग कि मैं एक मेल इंसान हूँ, और मैंने अपने अंदर चेंजेस कर लिए होते फिजिकली मेंटली कि लाइक आई हैव गॉन थ्रू अ सर्जरी, कंस्ट्रक्शन सर्जरी, then I would be called as a transsexual, not a transgender. Next is queer. Queer or the question are similar set of identity. That means people who have not established yet, right? उन्होंने अब तक अपने आप को कैटेगराइज ही नहीं किया कि वो L है, B है, L है, G है, B है, T है या क्या है. उन्होंने खुद को कैटेगराइज नहीं किया, वो अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. Now that particular kind of category is called queer or the questioning category. So this is like आप queer को समझेंगे. Next is intersex. Intersex is whose sexual anatomy or chromosome do not fit the traditional marker of male and female. अब ये बहुत ही different category है. इसमें क्या है, ये जो organs itself are not exactly male like
और फीमेल लाइक, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे, ना तो प्रॉपर मेल लाइक में ना प्रॉपर फीमेल लाइक में, ना दैट बिकम एन इंटरसेक्स कैटेगरी, कि वहाँ पे एनाटॉमी की प्रॉब्लम ऐसी होगी कि ना तो एग्जैक्टली प्रॉपर मेल वाले हैं और ना एग्जैक्टली प्रॉपर फीमेल वाले हैं. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज अलाई. अलाई इज लाइक a typically a queer kind of personality, जहाँ पे can be an ally for another member, like community and individual within LGBT community can be an ally for another member, identify them with them. ये थोड़ी काफ़ी lack understood वगैरह है और इसको हम नहीं चाहेंगे बिकॉज ये हमें नहीं समझना. नेक्स्ट इज, अब हम जाते हैं asexual. Asexual are those people who actually prefer do not have sexual attraction or sexual desire. That means like जो sexual craving किसी इंसान के अंदर होती हैं, which we call our primary needs of people, they don't feel it. Instead, there is a possibility they may feel some kind of repulsion against the sex. So that is a asexual category. It is not same as celibacy, because celibacy क्या होता है, आप अपने आप choose करते हो, you choose to do this. Like this is what you're choosing. But in case of asexuality, you do not have the desire, does not feel the sexual desire or attraction to group of people. Now next is pansexual, a person who experience sexual, romantic, physical, spiritual attraction, सब तरीके से इनके लिए सब चलता है. ऐसा नहीं एस्टैब्लिश नहीं किया, इन्होंने बोल रखा है इनके लिए सब चलता है. दैट इज अ pansexual थिंग. तो आई होप इसके बाद आपको LGBTQQIAAP ये पूरा जो आपका जो कलरफुल सेक्सुअलिटी का जो पैरामीटर है वो आप समझ चुके हैं. एंड इफ नॉट तो दोबारा कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इन द न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट अर्ज टू स्टॉप इलीगल अडॉप्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आपको भी आजकल न्यूज़ मिली होंगी, राइट, व्हाट्सएप पे. दिस ईयर ओल्ड like 15-year-old girl, both the parents have died, या फिर one parent have died but other parent is not able to take care of वगैरह, आप प्लीज़ अडॉप्ट करें वगैरह, ये सब करें. इस तरीके के मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं. एंड आई नो like being an empathetic person आप भी मूव होते होंगे and it is very genuine to be feel like moved by these messages, but then there is a caveat in this. एक warning है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है. that is like it is illegal अगर आप इस तरीके से मैसेज सर्कुलेट कर रही हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, और जो कि आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बनाया मेंशन कर रखा है. एंड इट इज़ ऑन दिस लाइन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है. सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड आफ्टर NCPCR ने अलार्म साउंड किए. देयर इज अ कंप्लेंट अबाउट इलीगल अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन. आपको तो लगता है कि बच्चा अडॉप्ट हो गया है, ही इज गोइंग टू हैव अ हैप्पी लाइफ, बट ही कैन बी अ विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, फ्लैश ट्रेड वगैरह. तो दैट इज समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. अगर इफ यू वांट यू हैव सीन अ चाइल्ड हु इज इन नीड ऑफ केयर और लाइक ही इज ऑर्फन, सबसे पहला चीज़ होता है उसको इमीडिएट रिलेटिव के पास लेके जाना. हाउएवर लाइक लव एंड केयर ही मे मिस इन देयर, बट इमीडिएट रिलेटिव इज द फर्स्ट चॉइस. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैथड ही यूज़ किए जाने चाहिए. सो इफ़ यू सी बहुत सारी गाइडलाइंस लाइक 1098, 10A, 1008 इस तरीके से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं. यूनिसेफ ने भी हेल्पलाइंस लागू कर रखे हैं. प्लीज़ आप उन सब इंस्टीट्यूशनल मेथड को ही यूज़ करें. एंड वेन एवर यू सी ए मैसेज लाइक दिस, प्लीज़ इस तरीके से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट ना करें, इंस्टीट्यूशनल मैथड को ही यूज़ करें. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज आफ्टर इस तरीके के अलार्म के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन एंड इट टॉक्ड अबाउट कि सोशल मीडिया दैट इज इस तरीके की जो सर्कुलेशन मैथड है वो इलीगल है, बिकॉज ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं. एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑलरेडी एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर लेआउट करता है बाय विच अ चाइल्ड इज टू बी अडॉप्टेड. एंड दैट्स वाई एंड दिस is also illegal because you are disclosing the identity of a children. आसानी से आप कोई बच्चा ऑर्फन हो गया, आप उसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं. यू नेवर नो किस हाथ में वो इन्फॉर्मेशन जा रही है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड against that kid. So be careful when you're doing that. You might be thinking you're doing a charity and you're being an empathetic person, but you might be doing a damage to a kid. So be careful when you're doing this. सो लेट्स मूव अहेड. अब हम समझते हैं NCPCR कि NCPCR जो ये पूरा लेकर आया है वो है क्या. NCPCR इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जो कि बेसिकली चाइल्ड विच एक्चुअली व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू डू इज ये चाइल्ड राइट सेंट्रिक पॉलिसीज, लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने की कोशिश करता है, एंड फॉर विच
it actually tries to bring them in consonance with the Indian Constitution, values of the Indian Constitution and the UN Convention on Child Right. So ये जो पूरा आपका पूरा लीगल प्रोसेस है, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता है. Next is, it is a statutory organization. As I explained earlier, statutory organization कौन सी होती है? Statutory organizations are those organizations which are made by the law of the parliament. और यहाँ पे वो कौन सा लॉ है? The law is Commission for the Protection of Child Right Act 2005. So after passing of this law, NCPCR आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है. अब इसके मेंबर कौन कौन से? एक चेयरपर्सन होता है who is having knowledge in the particular field, that is child right, and 6 other members जिसमें से 2 एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए. सो दिस इज अ कंडीशन यू शुड रिमेंबर, क्योंकि NCPCR पे क्वेश्चन आता है तो लाइक बट यू वुड बी एबल टू आंसर दैट बिकॉज आपने NCPCR डिटेल में पढ़ा था. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. इस तरीके के बॉडीली इन्फॉर्मेशन आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग. द कमीशन इज मैंडेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइक चिल्ड्रन, लाइक पॉस्को और राइट टू एजुकेशन, वो भी इसके मैंडेट के अंदर आ जाते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब क्योंकि हम NCPCR डील कर चुके हैं तो अब आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. नाउ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये सबसे पहले आपका 1986 में आया था, फिर 2000 में इसको अमेंड किया था. फाइनल रिसेंट आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का है और अभी रिसेंट भी इसमें अमेंडमेंट चल रही हैं. तो हम इसकी लेटेस्ट जो वो है वो गाइडलाइंस पढ़ेंगे. नाउ जो 1986 का जो एक्ट था, इट डिफाइंड अ चाइल्ड to be a person of age 16 if it is a boy and 18 if it is a girl. उसके बाद डेफिनेशन में भी चेंजेस किए, बट दिस इज लाइक 1986 का ये जो लॉ था ये इस तरीके से डिफाइन करता था. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स मूव अहेड इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2005 कि इसके प्रोविजंस क्या है. द प्रोविजंस फर्स्ट चेंज द नोमेनक्लेचर from juvenile to child, instead of using word juvenile it has started using child. Second, it has made several changes in definition and clarified them and used and included many terms like orphan, abandoned. These terms are also included so that उनके लिए भी respective provisions बनाए जा सकें. Next is it has also included provision to tackle the child offenders committing heinous crime. Now this is important because इसके बाद बहुत ज़्यादा अप्रोर क्रिएट हुआ था because of the child welfare agency. They believe child is only a mirror of society. अगर सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्राइम है तो चाइल्ड उसको मिरर ही करता है और उसका जो ब्रेन होता है, स्पेशली प्री फ्रंटल लोब होता है जो किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इतना डेवलप्ड ही नहीं होता कि इतना समझ पाए और उसको इतनी हीनियस पनिशमेंट दे पाए. बट ये तो एक पर्सपेक्टिव था जो कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस का था, बट देन देयर वाज अदर पर्सपेक्टिव एज वेल. वो तो कहानी का एक पहलू है ना, हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है. दूसरा पहलू ये भी था कि वेरियस जुवेनाइल were engaging in crime which was considered as crime against entire society. जैसे निर्भया के केस में जो निर्भया के साथ हुआ था वहाँ पे एक जुवेनाइल भी इन्वॉल्व था और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए. सोसाइटी started asking the same question कि to what extent a crime is tolerated. बच्चे के किस तरीके के गुनाह को आप माफ़ कर सकते हो. So after which after so much of uproar in society, there were certain changes made into Juvenile Justice Act, and after which if a child in age group of 16 to 18 commit a heinous crime, then उसको भी punishment मिलती है. punishment क्या है? उसे as an adult ही try किया जाएगा, like he'll be treated as an adult and he'll be punished accordingly. And this was like, just remember this. अगर by the way ये article आपके like अगर आपके means के एग्जाम में आ जाता है, because UPSC does that. वो आपसे तब सवाल पूछती है जब आप उम्मीद नहीं कर सकते. बट यस, इफ इट इज़ अ न्यूज़ एंड दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कोविड की वजह से ऑर्फनेज काफ़ी ऑर्फन बच्चे आ रहे हैं, सिनेरियो बढ़ चुका है. सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ एंड आई वुड रियली एडवाइज यू टू प्रिपेयर इट थॉरली. नाउ द अदर प्रोविजन इन द एक्ट इंक्लूड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड. अब एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाना है और एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी इसके अंदर बनाने की बात की गई है. ऑब्वियसली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लाइक टू टेक मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन,
ये उसके लिए बनाए गए हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी पर्पस कुछ ऐसा ही होता है, बट इट हैज़ वन थिंग दैट इज ऑफ ऑल द मेंबर इट इज गोइंग टू हैव एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर होनी चाहिए। सो दिस वाज लाइक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजन थे। अब चलते हैं आगे, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, दैट इज इट एडेड अ न्यू चैप्टर ऑन द अडॉप्शन टू स्ट्रीमलाइन अडॉप्शन। That's why I said na कि why it is illegal, because it is under the Juvenile Justice Act that entire procedure for adoption is being laid out, and इसने एक नया chapter add किया to streamline the adoption procedure to make it easy at the same point of a time make it transparent and tough enough so that इसको कोई misuse ना कर सके। And that's why if adoption is happening, please we make sure कि वो थोड़े इस तरीके के measure से हो। Next is Central Adoption Resource Authority, which was existing earlier only, it was granted statutory status, उसको legal recognition मिल गया इस law के through ही, so that ये अपने function को और अच्छे तरीके से कर पाए, and it actually maintains the resource of the children, उनके बारे में data और ये सब maintain रखना ये कारा का काम है। Next is the Act state that adoption of a child is final on the issuance of adoption by the court. As I said ना कि adoption तभी finalize होता है जब कोई अथॉरिटी, एक फाइनल गिवन अथॉरिटी फाइनल उस पर ठप्पा लगा देती है, और यहाँ पे वो जो अथॉरिटी है वो यहाँ पे आपका कोर्ट है। तो जब कोर्ट एग्रीज टू इट देन अडॉप्शन प्रोसेस आपका क्लियर हो जाता है। ऑल्सो इट टॉक्ड अबाउट एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपकी स्टेट रन कर रही हो और चाहे आपका एनजीओ रन कर रहा हो, मस्ट बी रजिस्टर्ड under the act within 6 months from the date of the commencement of the act। जिस दिन आपका एक्ट आ गया था उसके 6 महीने के अंदर बेसिकली ये जो आपके जो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उनको रजिस्टर हो जाना चाहिए। एंड विद दिस लाइक वी आर डन विद सोशल इश्यूज, और आप थोड़े सवालों के जवाब दे लेते हैं, बिकॉज इफ यू हैव लिसन टू मी केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन easily. Now let's just see this question. It says that consider the following given bodies. पहला है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दैट इज NCPCR, अभी हमने पढ़ा है, हमारे न्यूज़ में था ये। सेकंड इज नीति आयोग, आप जानते ही हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं जानते हो तो कभी मैं डिस्कस कर लूँगी। नेक्स्ट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, दैट इज कारा। ओके, हमने जान लिया, अब सवाल कैसा है ये भी जान लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर स्टैट्यूटरी। द क्वेश्चन इज आस्किंग इनमें से कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी है। देन आंसर फर्स्ट वन इज वन ओनली, देन वी हैव नोन ओके हाँ NCPCR तो स्टैट्यूटरी है आपकी, तो वन इज राइट, बट वन तो यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है और वन यहाँ पे भी है, दैट मीन्स वन इज नॉट हेल्पिंग अस। सेकेंड इज नीति आयोग, इज नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी, अभी इस आर्टिकल में हमने डिस्कस नहीं किया है, बट लाइक इफ यू रिमेंबर ये थोड़ी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट लाइक लेट्स मेक श्योर, थोड़ा श्योर हो जाते हैं ना। कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इज इट? अगर हम पीछे जाके देखें तो वी सॉ दैट कि कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया था, दैट मीन्स कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो राइट, जिसकी वजह से हमारे 1 और ये तो कट गए, राइट ना। अब हमारे पास क्या बचा, 1 and 3 है, 1, 2 and 3। नाउ वी हैव टू मेक चॉइस, नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि हाँ ठीक है, नीति आयोग आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको किसी लॉ से नहीं बनाया था। सो नाउ वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट 1 and 3 that is NCPCR and CARA are statutory bodies, and C is the right answer. With this, we are done with today's social current affairs. Thank you for staying connected with me. Stay at home, stay connected, and stay connected to ACUBE IAS.